নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। একদিকে সারা দেশে করোনা সংক্রমণের প্রতিরোধে লকডাউন অব্যাহত রয়েছে। প্রায় এক মাস ধরে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ ছিল, যদিও গত দুদিন হলো সরকারি কার্যালয়গুলি খোলার নির্দেশ জারি হওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় কিছুটা লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে। জামশেদপুর পুলিশ তাদের লকডাউনের কঠোরভাবে পালন করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ তদন্ত করে যাতায়াতের অনুমতি দিচ্ছে। জামশেদপুর পুলিশ দ্বারা মাস্ক ও হেলমেটের কড়াকড়িভাবে চেকিং করা হচ্ছে এবং বাহন চালান কাটা হচ্ছে, যাতে লোকে সঠিকভাবে নিয়মের অনুসরণ করেন। मेरा नाम रत्नेश कुमार और प्रचलित दंडाधिकारी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये हेलमेट का कड़ाई कब से शुरू हुआ? हेलमेट का कड़ाई परसों के आदेश से ज़्यादा हो गया अच्छा, और नहीं रहने के बाद फाइन वगैरह भी कटेगा। तो अभी तक आपके यहाँ पर ये हेलमेट का कुछ फाइन वगैरह कटा है क्या? जी, कल तो कटा है, सीट बेल्ट का कटा हुआ। सीट बेल्ट का कटा है। हेलमेट के लिए बाइक वाले को? हेलमेट वाले को कड़ाई कर रहे हैं हम लोग, अच्छा। और जो आदमी नहीं है उसको तो या तो वापस कर देते हैं, और आज अभी नहीं कटा हुआ है, लेकिन काटने के लिए आदमी मेरा बैठे हुआ है। अच्छा। বেসরকারি স্কুলগুলির সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ ঝাড়খণ্ড এডেড প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে জামশেদপুর জেলা প্রশাসনের কাছে 14,50,000 টাকার 7,250 প্যাকেট হরলিক্স প্রদান করা হয়েছে, যা দুস্থ ও অসহায় শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করে ইনস্টিটিউটের সভাপতি বেলি বোধনওয়ালা বলেছেন, শহরের সমস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের অবদান থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়, যা আজ জেলা প্রশাসনের হাতে হস্তান্তর করা হয়। अपना डोनेशन कंट्रीब्यूशन दे के हम लोग ने सब मिलके 14,50,000 रुपया इकट्ठा किया, और तब हम लोग ने डीसी साहब से कहा कि पूछा कि क्या आपको ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको हॉर्लिक्स की ज़रूरत है, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो महिला है गरीब तबके के, उनके लिए हमें ज़रूरत है। तो फिर हम लोग ने इस पैसे से इसको ऑर्डर किया, और आज हम अपने तरफ से मैंने 7,250 पैकेट, जो एक एक पैकेट 500 ग्राम का है, वो मैंने दिया जा रहा, और ये वो अपने तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो क्षेत्र में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। টিম সংঘর্ষ পরিবার টাটানগর রেল স্টেশনে পৌঁছায়। কিছুদিন আগে টাটানগর রেল স্টেশনে কর্মরত 40 জন কুলির পরিবারের সম্বন্ধে প্রিন্ট এবং মিডিয়া মারফত টিম সংঘর্ষ পরিবার তথ্য পায় যে এই সমস্ত কুলিদের অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয়। টিম সংঘর্ষ পরিবারের জন্য আজ একটি খুবই আনন্দের দিন, যে টিম সংঘর্ষ পরিবারের সদস্য কিশোর সাহুর জন্মবার্ষিকী এবং টিম সংঘর্ষ পরিবারের কুমারী মুদ্রিতা চ্যাটার্জি তার পিগি ব্যাংকের অর্থ ব্যবহার করে এই 40টি পরিবারকে সাহায্য প্রদান করে। এই সময় চাল, ডাল, ছোলা, ছাতু এবং বিস্কুট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও টিম সংঘর্ষ পরিবারটি হাল ছাড়েনি এবং সেই দুস্থ এবং অসহায় লোকেদের কাছে সাহায্যের জন্য পৌঁছায়। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বেসরকারি স্কুলগুলির দ্বারা অভিভাবকদের কাছে লকডাউন চলাকালীন সময় ফিস না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তবে জামশেদপুরের প্রাইভেট স্কুলগুলির সংগঠন ঝাড়খণ্ড এডেড প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এটি স্পষ্ট করেছে যে তারা কেন্দ্রীয় মানব সংসাধন উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে লকডাউনকে নজরে রেখে এই বছর স্কুলের ফিসে বৃদ্ধি করবেন না, এবং 2020 সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত অভিভাবকদের ফিস জমা করার জন্য বাধ্য করবেন না। একই সাথে কোনো ধরনের লেট ফাইন অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া হবে না। তবে প্রাইভেট স্কুলগুলির ম্যানেজমেন্ট ফি ছাড়ার মতো অবস্থানে নেই। সংগঠনের সভাপতি বেলি বোধনওয়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে স্কুলগুলি কিভাবে তাদের শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীদের ব্যয় বহন করবে। ঝাড়খণ্ড সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনার কাছে লকডাউনের সময় ফি না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে, তবে জামশেদপুর শিক্ষা বিভাগ বা জেলা প্রশাসন এই জাতীয় কোনো নির্দেশনা প্রাপ্তি সম্পর্কে অস্বীকার করে। जो आपके HRD मिनिस्टर है सेंट्रल के, उन्होंने भी एक आदेश दिया है कि आप फीस मत बढ़ाइएगा और एक बैग दबाव मत डालिएगा पेरेंट्स के ऊपर तुरंत अभी देने के लिए, उनको थोड़ा स्टैगर करके आप उनसे फीस लीजिए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग ने एक मैंने मैसेज भेजा है आपके मीडिया के द्वारा कि हम लोग अभी कोई फीस बढ़ाने को तो सवाल नहीं होता, हम नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे कि पेरेंट्स अभी तुरंत दे रहे हैं। हम उनको मार्च से लेके अगस्त तक का जो समय है
उसके अंदर हम टाइम दिए हैं कि इतने महीना को अंदर आप जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर दीजिएगा, और ये जो लेट पेमेंट होगा उसके लिए हम कोई फाइन नहीं चार्ज करेंगे। एक सवाल होता है कि हमारे पास दुनिया भर का खर्चा है, अब हम टीचर लोग को तो हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो हमारे आते हैं साफ सफाई करने उनका तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बाकी हमारे पास में और भी बहुत से फिक्स लायबिलिटी है उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। तो वो सब का पैसा कहाँ से आएगा यदि हम फीस में, हमारा फीस से ही तो वो सब खर्चा आता है ना। और यदि हम वो ये करते हैं तो हम मैंने हमको ये कह दें कि आप टीचर का पेमेंट मत दीजिए, वो तो कहेंगे वो तो करना ही है, उसके बाद में ये सब जो और बाकी जो खर्चे हैं तो हमको तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। तो आप मैंने समझना होगा कि हम कोई तरह का मैंने सहूलियत दे सकते हैं, मगर फीस माफ करना हमसे नहीं होगा। দেশে দিন দিন বাড়ছে করোনার আতঙ্ক, একই সঙ্গে রাজনীতিও শুরু হয়ে গেছে এই সংকটের মাঝে। গতকাল ঝাড়খণ্ডে প্রবাসী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনার নামে উপবাস কর্মসূচিতে বিজেপি নেতাদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ক্ষমতাসীন দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জবাব দিয়েছে। ক্রীড়া মোর্চা দলীয় সহ রাজ্য সভাপতি মনোজ যাদব প্রাক্তন বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য সেক্রেটারিকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে আজ বিজেপির কর্মী ও শিক্ষার্থীরা ছাত্রছাত্রীদের নামে প্রহসন করছে। কার অনুরোধে 11 লক্ষ ঝাড়খণ্ডী শ্রমিকের রেশন কার্ড বাতিল করা হয়, তিনি এর জবাব চান। তিনি প্রাক্তন খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী সরজু রায়ের বক্তব্য উল্লেখ করে বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন যে যখন প্রাক্তন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী সরজু রায় তার নিজের সরকারকে দরিদ্র শ্রমিকদের রেশন কার্ড বাতিল না করার আবেদন করেছিলেন, সেই সময় কেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্য সচিব দরিদ্রদের নিয়ে চিন্তা করেননি? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग कहते हैं कि नौटंकी करने में लोग माहिर हैं। जब इनकी सत्ता थी, ज़्यादा दिन पहले नहीं, मुझे लगता है कि 3 महीना 4 महीना पहले इन्हीं की सत्ता थी, और इनके सरकार में इनसे ये पूछिए कि 11 लाख झारखंड के मजदूरों का राशन कार्ड इन्होंने निरस्त कर दिया था, और बिना खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदरणीय सरयू राय जी के निर्देश के, जिस पर उन्होंने आपत्ति भी उठाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने आदरणीय रघुवर दास जी ने इसको निरस्त कर दिया था, और 18 झारखंडी भूख से मर गए थे झारखंड में। और वो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है, हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, और जो पूर्व मुख्य सचिव थे उनसे प्रश्न होना चाहिए कि किस आधार पर, किसके कहने पर उन्होंने 11 लाख मजदूरों का राशन कार्ड निरस्त किया था झारखंड में। उस समय इनको नहीं समझ में आ रहा था, आज ये ढोल पीट रहे हैं, और ये दिखावा है इनका, ये उपवास करने का। आप इनसे ये पूछिए कि आज झारखंड सरकार, यहाँ नहीं, झारखंड ही नहीं, हमारे जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, जो बाहर फंसे हैं, उसके लिए भी हेमंत सरकार ने राशि तय की है, उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। और जिस दिन हमारी सत्ता आई है उस दिन हमारे खजाने की क्या स्थिति थी, झारखंड दिवालिया था। वैसे परिस्थिति में आज भी झारखंड को, खजाने को इन्होंने दिवालिया कर दिया है। वैसे परिस्थिति से आज हेमंत सरकार लड़ रही है, और पूरे भारत में अगर आप देखें तो झारखंड में जिस तरह से काम किया गया है, शायद ही किसी राज्य में इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन इनका काम है ढोल बजाना, और वो भी जनता के बीच में दुष्प्रचार करना। आप भैया, जो परिस्थिति है देश के अंदर, इस परिस्थिति में आप राजनीति ना करें, बल्कि समर्थन करें, अच्छे कार्य जो हो रहे हैं सरकार के द्वारा उसमें साथ निभाने का काम करें। मेरी यही आग्रह होगी सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि गलत दिशा में राजनीति ना करें। গত মাসে ছেলের বিবাহ ছিল 22 মার্চ। জামশেদপুরের সোনারী পরদেশী পাড়ার নিবাসী গণেশ গত মাসের 17 তারিখে উড়িষ্যার বালঙ্গীর জেলার থেকে ছেলের বিয়ে উপলক্ষে আসা অতিথিদের জন্য নিঃস্ব হয়ে যেতে বসেছেন। করোনা সংকটের কারণে এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানে 24 মার্চের পর থেকে লকডাউন ঘোষণার পরে সর্বসাধারণের জন্য কারফিউ করে সমস্ত যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এমন যে অতিথিদের যত্ন নিতে নিতে ছেলের বাবার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে। এই সংকটের মুহূর্তে পাড়ার একটি বাড়ি থেকে সবাইকে খাবার ও জল সরবরাহ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তারা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন। परेशानी यही हुआ कि मेरे बेटा का शादी हुआ था, पार्टी का दिन से
गाड़ी मोटर बंद हुआ, हम पार्टी भी दे नहीं पाए हैं। मेरे जो आदमी आए हैं गांव से शादी ब्याह में, इतना परेशानी हो रहा है। हम जितना मेरा हुआ इतना खिलाया पिलाया, कुछ भी किए हैं। अभी हमको कोई हेल्प चाहिए कि जैसा करके भी उड़ीसा लोग को थोड़ा पहुँचाने। हम लोग उड़ीसा से शादी में आया था और यहाँ फंस गया है। और 17 तारीख को आया था, 22 को पार्टी था और हम लोग यहाँ फंस गया है। हम लोग यहाँ पार्टी भी नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ में है। हमको कैसे करके हम सरकार से हमको कैसे करके उड़ीसा पहुँचा। मेरे घर से 2 घर हट के किनारे में जो घर है, गामा सिंह का घर है। इस घर में लोग किराए में आज से 3 महीना पहले आए थे। इनके लड़के की शादी 16 मार्च से शुरू हुआ। 19 तारीख को लोग बारात गए उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। बारात गए, 20 तारीख को वहाँ शादी थी, 21 तारीख को वहाँ से लौटे हैं। लौटने के बाद में 22 तारीख को यहाँ पार्टी था। चूँकि 22 तारीख को कोरोना का जो अभी चल रहा है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक किया गया कि 1 दिन का बंदी के लिए लॉकडाउन कहते हैं हम लोग। चूँकि चैन टूटेगा तो 22 तारीख को बंदी के चलते इनके यहाँ पार्टी कैंसिल कर दी, पार्टी नहीं हुई। फिर 23 तारीख से फिर कंटिन्यू बंदी जो शुरू हुआ कोरोना को लेके, तो उनके चलते इनके जितने भी उड़ीसा से मेहमान आए थे, लड़की पक्ष के भी कुछ लोग आए, लड़के वाले भी है, सब मिला के 55-60 लोग यहाँ पर हैं। করোনা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গত 41 দিন ধরে সারা দেশে লকডাউন চলছে। তবে সরকারি অফিসগুলি ছাড়াও গ্রিন জোনের কিছু প্রয়োজনীয় পরিষেবাকে 20 এপ্রিল থেকে শিথিল করা হয়েছে। তবে জামশেদপুর এবং সরাইকেলা সীমান্তের গতিবিধির কারণে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। জামশেদপুরের দিকে যাতায়াতকারী গাড়িগুলির কারণে আদিত্যপুর ব্রিজের উভয় প্রান্তে জ্যামের পরিস্থিতি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই জামশেদপুরের এসএসপি চেকপোস্টে পৌঁছান, যেখানে তিনি চেকপোস্টের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য অন ডিউটি পুলিশ কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে মেডিকেল টিমকেও কড়াভাবে যাতায়াতকারী লোকেদের স্ক্যানিং করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। জামশেদপুর ও সরাইকেলা এখনো গ্রিন জোনে রয়েছে। তবে অব্যাহতির কারণে উভয় জেলার রাস্তায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তার থেকে করোনার সম্ভাব্য বিপদ পুরোপুরি এড়ানো অসম্ভব। लोग अगर करेंगे तो हम लोग कम्युनिटी ट्रांसफर में कोई समय नहीं लगेगा। नहीं और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री 3 बार 4 बार आके बोल चुके हैं। लोग इसको लेके एकदम बेफिक्र है, जैसे कि लग रहा है अभी तो हम लोग यहाँ से जो भी पुलिस कर्मी के द्वारा 2 आदमी जो बैठ रहे हैं उसको एकदम मना किया जा रहा है। साथ मेडिकल टीम यहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। जो भी लोग आना जाना कर रहे हैं उनका हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं। टेम्परेचर अगर उनका हाई होता है तो उसको हम लोग तत्काल तुरंत अस्पताल भेज रहे हैं। वहाँ से अगर वैसे स्थिति अगर उसका रहेगा, सर्दी खांसी या टेम्परेचर हाई है, तो उसको क्वारंटीन करने की भी व्यवस्था की गई है। क्या लोग नहीं मान रहे हैं? नहीं, लोग बहुत एकदम साथ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। করোনা সংকটের মধ্যে রমজানের পবিত্র মাস শুরু হতে চলেছে। সংকটের এই সময় সরাইকেলা পুলিশ জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ইবাদত সম্পর্কিত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছেন, যেখানে জেলার এসএসপি কার্তিক এসে একটি ভিডিও বার্তা জারি করেছেন, যাতে জেলার সমস্ত মুসলমানদের লকডাউনের নিয়ম মেনে চলার জন্য এবং 5 জনের বেশি সংখ্যক লোকের বাড়ি থেকে না বেরোনোর আবেদন জানিয়েছেন। সমস্ত রোজাদারীদের বাড়িতে থেকে নামাজ পড়ার আবেদন করা হয়েছে। सरायकेला करसों जिला के सभी मुस्लिम भाइयों को सरायकेला करसों जिला पुलिस की तरफ से रमज़ान महीने शुरू होने का बहुत बहुत मुबारक। और इस पूरा पर्व को हम लोग बहुत सुरक्षित तरह से मनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश ऑलरेडी जो है सब जगह दिया हुआ है। आप सभी को जैसे मालूम है 5 लोगों से अधिक कहीं भी जो है इकट्ठा नहीं होना है और सभी लोग अपना घर से ही जो है नमाज पढ़ना है। बाज़ार कहीं निकलना है तो उधर ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और ज़्यादा नज़दीक कोई किसी के साथ ना सटे और मास्क पहन के ही कहीं भी निकला जाए। और इफ्तार पार्टी पब्लिकली मनाना और रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन कहीं भी इकट्ठा होना ये कम्प्लीटली मना है। इन सभी के साथ इन सभी निर्देशों को पालन करते हुए हम लोग इस त्योहार को हम लोग मनाएंगे तो बहुत ही सुरक्षित तरीके से और संतुष्टि से ये त्योहार हम लोग मना सकते हैं। इस आपसे यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
যদিও ঝাড়খণ্ডে করোনা এক প্রকার ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে চলেছে, তবুও ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধিরা সবার মাঝে রাজনীতি করা শুরু করেছে। এই সময় পুরো বিশ্ব যখন করোনার সংকটের সাথে লড়াই করছে, একই সময় ঝাড়খণ্ডের বাইরে আটকে পড়া প্রবাসী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বিজেপি যেখানে একদিনব্যাপী অনশন করে বর্তমান ঝাড়খণ্ড সরকারকে শ্রমিক বিরোধী হিসেবে ঘোষণা করে, অন্যদিকে জামশেদপুরের পোটকার বিধায়ক সঞ্জীব সরদারও এই বিশ্বব্যাপী সংকটের মাঝে বিজেপির উপবাস কর্মসূচিটিকে অযৌক্তিক এবং সংকটের সময় সমর্থন না করার অভিযোগ করেছেন। সঞ্জীব সরদার বলেন যে এই বৈশ্বিক সংকটে সবাইকে একত্রিত হওয়া উচিত, তবে বিজেপি তার রাজনীতি বাঁচাতে প্রহসন করছে। आज इस पूरा विश्व और पूरा देश और पूरा राज्य ये सारे लोग मिल के कैसे करके कोरोना से और इस महामारी से कैसे लड़ने का आज कोई एक ऐसा नीति योजना या साथ साथ सबको सब सामाजिक संगठन भी आ चुका है कि इस महामारी से कैसे निपटने के लिए आज इनको अपना राजनीति बचाने के लिए आज घर में बैठ के इस तरह का हरकत कर रहे हैं। आज उन और प्रयास कर सकते हैं कि उनका भी क्षेत्र में उनका भी लोग है कि उनको किस तरह का मदद ले पाए, लेकिन बल्कि वो नहीं करके वो अपना घर में बैठ के ये एगो फोकसी राजनीति कर रहे हैं। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীর আহার যোজনার অন্তর্গত আনাজ ভান্ডার শুরু করেছেন। এখন প্রতিটি রেশন কার্ডধারীরা প্রতি ইউনিট প্রতি 2 মাস 10 কেজি চাল বা গম পেতে সক্ষম হবেন। বিপিএল অন্তর্দয় কার্ডধারীদের একেবারে বিনামূল্যে আনাজ দেওয়া হবে। 1 মে থেকে প্রধানমন্ত্রীর আহার যোজনার বিতরণ সম্পর্কে অগ্রিম পোটকারে 126 জন ডিলারকে যুদ্ধ স্তরে আনাজ পৌঁছানো হচ্ছে, যাতে কার্ডধারীরা সঠিক সময়ে খাদ্যশস্য পেতে পারেন। এখনো পর্যন্ত প্রায় 40টি রেশন দোকানদারকে প্রধানমন্ত্রীর আহার যোজনার আওতায় খাদ্যশস্য পাঠানো হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ডিলারদের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে, যাতে প্রতিটি কার্ডধারীদের কাছে সময় মতো আনাজ পৌঁছে দিতে পারে। ये आपदा को देखते हुए ये प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत प्रत्येक यूनिट 5 केजी की दर से 2 महीना का राशन आया है और गुटका प्रकरण अंतर्गत 126 डीलरों के बीच जो राशन आई है उसको मैं भिजवा रहा हूँ। और अब तक 34-35 डीलरों ने अपना अनाज का उठाव कर लिया गया है और 30 इस महीने का अंतिम तारीख तक सभी डीलर अनाज उठाने के लिए आदेश दे दिया गया है। वो अनाज उठा लेंगे और 1 तारीख से मतलब जो लाभुक है उनके बीच अनाज का वितरण किया जाएगा। कैसे वितरण होना है? ये अनाज सरकार के आदेशानुसार ये निःशुल्क वितरण करना है। प्रत्येक यूनिट 5 केजी की दर से 2 महीना का राशन है, 10 केजी के हिसाब से। किस महीने का है? ये अप्रैल और मई महीना का राशन है। লকডাউনের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে শর্ত সাপেক্ষে বইয়ের দোকান এবং বৈদ্যুতিক ফ্যানের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় আজ প্রথম দিন বইয়ের দোকান খোলে। সেই গাইডলাইন অনুসারে পুলিশ লাইন স্থিত স্টুডেন্টস বুক স্টোরে গ্রাহকদের উপচে পড়া ভিড় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখার কারণে পুলিশ এসে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু পুস্তক বিক্রেতারা লকডাউনের সময় বইয়ের দোকান খোলা অনুচিত বলেন, কারণ এতে সংক্রমণ বাড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। অন্যদিকে অভিভাবকরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। डीसी साहब का ऑर्डर से आज किताब दुकान का खुला हुआ है। इसके कारण दूर दराज से हम लोग आए हैं और अपना लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा किताब ले रहे हैं। ऐसा कि आज जो है अखबार जब सुबह में पढ़े तो पता चला कि बुक स्टोर वगैरह खुल रहा है। बड़ा खुशी वाली के लिए बच्चा लोग का पढ़ाई तो 1 महीना से रुका हुआ था, बुक की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था। तो आए हम लोग यहाँ पे बुक लेने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर अच्छा लगा देख कर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है और ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आए हम लोग। और मेरा नाम रचित कुमार हुआ और हम VIP कॉलोनी पॉलिटेक्निक रोड से आए हुए। कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, इसको एकदम पूरा कंप्लीट शटडाउन किया जाए, बस हमने चाहे दुकान खोलना। हम लोग ऐसे भी सभी कस्टमर का प्रेशर की वजह से हम लोग को दुकान खोलना पड़ रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। तो बहुत ज्यादा फोन आ रहा था, प्रेशर हो गया। कल पेपर में दिया हुआ है किताब की दुकान खुली हुई है, लेकिन हम लोग अभी तक सब प्रेशर से खोलना पड़ रहा है। हम लोग ओनली बुक बेच रहे हैं, किताब गारमेंट्स के धनबाद का कॉपी पेन स्टेशनरी अगर मांग रहा है तो हम लोग लूज नहीं दे रहे हैं और हम लोग दे भी नहीं रहे हैं। अभी हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं, खाली किताब दे रहे हैं और डिस्टेंस हम लोग पालन कर रहे हैं। ज्ञान सागर। क्या नाम आपका? अजय। अच्छा, हम दुकान के ओनर है? नहीं है, स्टाफ है ज्ञान सागर। का पालन करते हुए ये दुकान बंद का आज ही खोलवे किए हैं और
सबको नियम पालन करते हुए दे रहे हैं। ধানবাদ শহরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি প্রচারের গাড়ি বের করা হয়েছে, যার মধ্যে ঘোষক একটি লাউড স্পিকারের মাধ্যমে শহরের হীরাপুরে ঘোষণা করেন যে পজিটিভ রোগী পাওয়ায় শহরের 25 নম্বর ওয়ার্ড ডেঞ্জার জোনে চলে এসেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে লোকজনকে ঘর থেকে না বেরোনোর জন্য এবং সরকার কর্তৃক জারি নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করার আবেদন জানানো হয়। একই সাথে আরও বলা হয় যে বাইরে থেকে আসা লোকেদের বিষয়ে স্থানীয় থানায় খবর দিতে, যাতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ करा जाए। आज वार्ड के कुछ लोगों के द्वारा टेलीफोन पर मुझे ये सूचना दी गई कि एक ऑटो है जो जन सूचना विभाग का बोर्ड बैनर लगा करके और प्रचार कर रहा है कि वार्ड संख्या 25 में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है और उससे एहतियात रखने की अपील की जा रही है उस ऑटो के द्वारा। इस सूचना के मिलने के बाद मैंने जिला प्रशासन के संबंधित विभाग से बात की और बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये भूलवश चलाया जा रहा है। ये 25 नंबर नहीं 26 नंबर वार्ड के बारे में बोला जा रहा है, जो कि अजंता पाड़ा में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है वो क्षेत्र है। तो इसलिए और आप पब्लिक की सूचना पे आप भी बात कर रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये निश्चित तौर पे अभी तक तो यहाँ कोई कोरोना संदिग्ध मरीज पाया गया ऐसी जानकारी हमें नहीं है। और वो संबंधित ऑटो की जो बात है वो 25 नहीं वो 26 नंबर के बारे में प्रचार कर रहा है और पिछले कई दिनों से कर रहा है, जो कि भूलवश मानवीय भूल है, वो उसको सुधार कर लिया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने कहा है। যুব সংঘর্ষ মোর্চা টিম দ্বারা স্টেশন রোডে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে প্রায় 100 জন দরিদ্র ও অসহায় লোকেদের মধ্যে রুটি এবং বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। যুব সংঘর্ষ মোর্চার সভাপতি দিলীপ সিং বলেন যে লকডাউন ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই তিনি এবং তার দল নিয়মিতভাবে দরিদ্রদের মধ্যে রেশন, লুচি, সবজি, খিচুড়ি এবং মাস্ক বিতরণ করে যাচ্ছেন এবং যতক্ষণ লকডাউন চলবে এবং জনজীবন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তিনি এবং তার দল অসহায় দরিদ্রদের সেবা করে যাবেন। आज हम लोग यहाँ पर धनबाद स्टेशन के पास जो लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए ब्रेड, बिस्किट और पानी का हम लोग यहाँ पर मुहैया कराए हैं अपने संगठन के द्वारा। जी क्या क्या बांट रहे हैं? आज हम लोग ब्रेड, बिस्किट और पानी का व्यवस्था किए हैं, जो कि युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी लगातार लॉकडाउन के समय से ज़रूरतमंदों के बीच में खाना वितरण कर रही थी, अब सूखी सामग्री भी वितरण कर रही है और जब तक 3 तारीख तक लॉकडाउन है तब तक ये सेवा जारी रहेगी। आपका परिचय? दिलीप सिंह, युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी केंद्रीय संयोजक। আজ জামশেদপুরস্থিত পশুডি এলাকার হলুদবনির তিরিলটোলা, বানিয়াবস্তি এবং প্রমথনগরের কিছু দরিদ্র ও অসহায় লোকেদের মধ্যে জেলা পরিষদ রানা দের দ্বারা রাশন বিতরণ করা হয়, যাতে এই এলাকায় কোনো মানুষ অনাহারে না থাকে।